Since childhood, I've been a great enthusiast about learning new things, and down the line, I have covered a lot of things that I used to think at a point of time is not possible or is very hard for me. I used to be a very shy guy when I was a kid. मेरे को लोगों से बात करना नहीं आता था, but I have gone through a process of self development where I know how to talk to people, I know how to confidently talk in front of a camera, I know how to swim, which has been a childhood trauma for me. I am a designer now, considering that 19-year-old self, if I remind कि आसिफ तू एक टाइम पे डिज़ाइन कर सकता है, लाइक मैं आर्टिस्टिक काम ये कैसे हो गया. आई एम श्योर यू गाइज वॉन्ट टू डू समथिंग एज वेल. तुम भी एक लाइफ में टाइम पे खड़े हो जहाँ पे तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है. यू वॉन्ट टू प्रूव अदर्स, यू वॉन्ट टू प्रूव योर फैमिलीज, यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट डू समथिंग. And there'll be multiple things that you want to accomplish, that you want to conquer, right? And one thing that I believe which matters the most when you are in the journey of learning something, and that will be purpose. What do I mean by that? Ask yourself कि whatever I'm trying to conquer, whatever I'm trying to learn, कितना ज़रूरी है मेरे लिए. अगर मेरे को एक सिंगर बनना है, डू आई रियली वॉन्ट टू बी अ सिंगर? अगर मेरे को एक डिज़ाइनर बनना है, अगर मेरे को एक क्रिकेटर बनना है, डू आई रियली वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर? बिकॉज कोई भी रास्ता तुम चुन लो, कोई भी लर्निंग के पाथ में तुम चले जाओ, मुश्किलें तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, यू विल स्ट्रगल, यू विल सफर थ्रू इम्पोस्टर सिंड्रोम, यू विल फील यू विल नॉट गुड इनफ. बट इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू यू दैट यू गोना स्टिक टू दैट पर्टिकुलर वे regardless? If the answer is yes, no matter what the burdens that are going to come in front of you, you're going to overcome it. So पहले वो पता लगाओ. Does it mean to you enough? Is it a dream that is given by your parents? Is it a dream that is given by your friends? Is it a dream that is given by your society? Then it might not. Then it just might feel never-ending process that just lashed onto you. So understand, question yourself. Is this something that I really want to do in my life? The next important thing, get started. Very obvious, right? But trust me, it's not. Look around you. Ask yourself, in this past today, past 1 week, past 1 month, all this time you have been wanting to do something particularly which you want to become. As we have already determined that that is our purpose, you already want to do it, right? But why haven't you got started with it yet? It can be fear of rejection. It can be fear of insufficiency. तुम्हें लगता होगा अगर मैं करूँगा तो मैं खुद को प्रूव कर दूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता. So understand, regardless of all this, I know bro, I know how hard it is. I am doing it every day. I know how hard it is. But trust me, regardless, you have to do it. You have to do it today. You have to do it now. Next, I want to deal with this subconscious fear that we all have inside our head. किसी के लिए वो rejection है, किसी के लिए वो insufficiency है. पहले rejection के साथ डील करते हैं. एक चीज़ समझ लेते हैं पहले. No matter what you want to do, when you do it for the first time, people is gonna reject you. मैंने बार बार बोला अपने वीडियोस में, राइट? पीपल आर गोना रिजेक्ट यू. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. अगर वो चीज़ तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, कौन रिजेक्ट कर रहा है तुमको? तुम्हारे फैमिली मेम्बर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त? इफ दैट थिंग मैटर्स टू यू सो मच, डू यू केयर अबाउट देयर जजमेंट? इफ दे डू, यू नॉट डूइंग इट इज इनफ फॉर यू. क्योंकि जजमेंट तो देखो आएगा, चलो मान लेते हैं आने वाला है. वो तुमको बोलेंगे ये आसिफ क्या कर रहा है, ये चीज़ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास, ये बोलेंगे. वो चीज़ क्या तुम्हारे इतनी ज़रूरी है वैल्यू करना कि तुम्हारा जो पर्पस है तुम उसको ना फॉलो करो? इन अ वे, जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी, आर यू डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ बाई नॉट डूइंग वॉट योर सेल्फ वॉन्ट? तुम्हारे अंदर वाला जो चाइल्ड है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पस, राइट, दैट इज़ वन ऑफ द चाइल्डहुड थिंग, दैट इज़ अ कोर need, the core purpose that you want to do. Is this reason of making other people happy sufficient enough कि तुम खुद को धोखा दो? And I am sure if it's big enough for you, it won't be. So first of all, rejection आने वाला है भाई. Just मान लो और करो regardless. Get started. Next और एक touch point है जो I want to cover is the feeling of insufficiency. यहाँ पे ईगो वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाए. ईगो क्या है? ईगो वो है कि अभी मैं जिस स्टेट में हूँ इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, राइट? आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम इनकेपेबल ऑफ एनी थिंग ऑन एनी वेज, राइट? लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ करनी है जिसको मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं आज आई विल गेट स्टार्टेड विथ इट, आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गुड एट इट. एंड नो वॉन्ट्स टू गेट सो अनकंफर्टेबल फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम वेयर वी आर to make ourselves uncomfortable, right? To make ourselves feel that I'm not good enough. It is okay.
It is okay, you are not good enough. You should know that, right? I am taking this shot, right? I am doing this this is my third or fourth take. Trust me, it's so tiring to speak in front of a camera when there's no person in front of you. But I know how important is this for me. I know why I started with it in the first place. तुम बुरा लगेगा क्या सोचेगा I will feel incapable about myself. It's okay. I am also in the learning stage, so I have to give myself the beginner's advantage कि भाई तू अभी सीख रहा है, तू कर, तू सही गलत के बारे में मत सोच, तू बस कर. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने थोड़ी देर में सीखी है. क्योंकि टिल एज 18 आई हैव बीन अ लोन वुल्फ. लोन वुल्फ बोलूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब घर पे बैठ के मैं अकेले ही डील करता था. लाइक आई यूज्ड टू बी नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल सो मच. अपने घर पे रहता था. आई यूज्ड टू डील विद माई ओन थिंग. गाना गा लिया, ये कर लिया, वगैरह वगैरह. एंड डाउन द लाइन फ्रॉम एज 18 to 24, राइट, आई हैव बीन अराउंड पीपल मोर. And being around people more, there are more instances where I have been able to share my pain and goals with others. And in the process, I have found people who are very similar to kind of thought process I carry. And that brings a lot of sense of belonging कि अरे मेरी तरह भी लोग हैं. और जब तुम्हारे तरह लोग होते हैं, राइट, यू गेट एक्चुअली मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड. तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अपने ही दुनिया में अपना ही कैसल बना रहे हो. नहीं, वहाँ पे लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी तरह ही एक स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड. चीज़ें ज़्यादा फन हो जाती हैं, राइट. सब तरीके से लाइफ में ना पेन रहेंगी, लेकिन जब एक कंपेनियनशिप आ जाती है, राइट, एक तरीके से एक अकाउंटेबल पर्सन आ जाता है जिसको देखते हो तुम, जो तुम्हें पुश करता है और तुम उसको पुश करते हो, तुम्हें उसकी पेन्स दिखती हैं, तुम खुद के, वो तुम्हारा पेन देखता है, तो इससे ना एक शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस बनते हैं. तो इसमें जो तुम प्रोसेस में तुम जो आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा फन हो जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्जेंसी. एंड बीइंग ए प्रोफेशनल परफेक्शनिस्ट एंड प्रोफेशनल लेजी गाय, अर्जेंसी इज गोना बी अ डील ब्रेकर फॉर यू. वाई? अगर तुम्हारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है ना कि कब तक तुम वो करना चाहते हो, यू गोना कीप ऑन डिलेइंग इट फॉर मोर टाइम. So if you have the problem of procrastination, you have to create a sense of urgency, and there are plenty of ways you can do that. Number one, create a false timeline. When I was getting started with making content, right, in February 2024, I did this 7-week story challenge. Basically, I had the fear of getting opinion from others, and also was keep delaying it because there was no certain one who was asking me, आसिफ तुझे अभी करना है कर. नहीं, वो मेरे ऊपर था, right? So taking that challenge forced me to come to camera regardless of what I feel and do it every day. तो इससे क्या हुआ, मेरे को एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट होगी कि मुझे हर दिन कुछ बनाना है. तो तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं बचता उस चीज़ को अच्छे से करने का. रादर देन यू फोकस मोर ऑन कंप्लीटिंग इट रादर देन डूइंग इट नाइसली. दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शनिज्म, आई गेस. यू फील यू वांट टू डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट इन अ वे यू टेक सो मच ऑफ टाइम दैट यू कुड हैव सेव्ड अदरवाइज. उसका मतलब ये है कि तुम अगर आज ही एक्शन लेने लग जाओ ना, नो मैटर हाउ बैड इट इज, it will be way more productive for you rather than taking all that time together and doing something once. Quantity brings quality. तुम जितनी बार उस चीज़ों को करोगे उतना वो बेहतर होते जाएगा. The next point will be creative feedback loop. The easiest way to do it is to start journaling. For now, let's take an example learning to how to swim. So जैसे तुम day 1 से start करते हो, right? मेक ए सर्टेन टाइम लाइन. तो हर वीकली तुम अपने आप को जज करोगे. इसके लिए क्या करना है, तुम्हें रोज जाके फर्स्ट डे में तुमने जो किया है वो पहले करो और फिर रात को उसको लिख लो. ये चीज रिपीट करो 7 दिनों तक. तुम जब खुद को रिफ्लेक्ट बैक करोगे ना ऑन द लास्ट 7 days दैट यू हैव स्पेंट ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फील गुड अबाउट इट कि भाई जो तुम कर नहीं रहे थे अभी तुमने वो किया, 7 दिन तक लगातार किया, एंड द रिजल्ट्स आर विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे मैं हर दिन उस चीज पे इंप्रूव कर रहा हूं. एंड इन द 7th day यू नीड टू कंक्लूड व्हाट डिड यू डू गुड, व्हाट डिड यू डू बैड, एंड व्हाट डू यू नीड टू इंप्रूव फॉर द नेक्स्ट वीक. Same you repeat again. This process in an overall manner improves your visibility towards your process and it becomes very enjoyable in a way. Next very important find, मैंने कोई भी चीज़ ले ली हो, वो डिज़ाइन सीखना हो गया हो, वो हाउ टू टॉक टू पीपल सीखना हो गया हो, एक चीज जान लो, इट्स नॉट द एंड रिजल्ट. क्योंकि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, हम सीधा एंड रिजल्ट को समझ लेते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव. उसको हम प्राइमरी इवेंट बना लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं स्विमिंग करने जा रहा हूं तो आज ही मुझे परफेक्ट स्विमिंग करनी है. अगर मैं आज को कम्युनिकेशन स्किल करना है तो आज ही परफेक्ट करना है. तो इससे बहुत एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन में, बिकॉज द फर्स्ट डे यू गो, राइट, 2 to 3 days यू डू,
यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें एकदम टॉप लेवल एक्सपर्ट लेवल का आउटकम चाहिए जो कि हो नहीं सकता. It's a waste of expectation from yourself. One thing that I have found have worked for me for everything, whenever you show off for anything, right, in itself it's a win. अगर मेरे को आज content creation करना है, uploading this content is not the win. Starting the camera, sitting in front and trying is itself a win. That is the kind of positive environment you need to create for yourself. तो celebrate the small win. इससे क्या होती है, तुम हमेशा डोपामिन के उस लेवल पे रहते हो ताकि तुमको वो नेक्स्ट दिन शो अप करने में ईजी हो. एंड ब्रो, no one can beat a guy who shows up every day. So these are the 7 primary tips, 2 bonuses that I want to share with you. First of all, learning and action taking happens side by side. एक बहुत सिली मिस्टेक है जो मैंने खुद करी है, वेयर आई फील कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले सब कुछ सीख लेना है बिफोर आई इवन कंसिडर माई सेल्फ टू बी एबल टू डू दैट. कि अगर मैं डिजाइनर बनना चाहता हूं तो मुझे डिजाइनिंग का A to Z आना चाहिए बिफोर आई पुट अ लाइन इन अ पेपर. नहीं. If you want to learn something because you want to become that identity, you want to become a designer, you want to become a painter, you become an artist, whatever. You can just think and be. Imagine I tell you from now on you are a designer. तुम्हें बस सोचना है तुम डिजाइनर बन गए. What will you do? तुम्हारा जो काम है तुम वो करोगे ना. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डिजाइनर हो, तुम जाके फिग्मा खोलोगे, जो भी खोलोगे, you just start act on it. That's all you need to do. नेक्स्ट, जब तुम वो करोगे तुम्हें प्रॉब्लम फेस होगी, तुम्हें पेन होएगा, तुम्हें फीडबैक मिलेगा कि मुझे क्या नहीं आता है. देन यू स्विच बैक टू द लर्नर पार्ट. यूट्यूब में जाओ, बुक पढ़ो, जो भी पढ़ो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, सब करने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखो, गो बैक टू फिग्मा, इम्प्लीमेंट देयर. फिर करोगे, फिर प्रॉब्लम होएगा, फिर जंप इनटू दैट. ये जंपिंग वाला प्रोसेस है ना, इज वे मोर फन, इज वे मोर इंटरेस्टिंग एंड इज वे मोर विजिबली प्रोग्रेसिव देन द अदर, where you feel कि मुझे सब सीख लेना पड़ेगा and it's too overwhelming. And lastly, progress is a very non-linear thing. As a human, right, we are very impatient being. हमें जब तक कुछ डोपामिन नहीं मिलता, कुछ लड्डू नहीं मिल जाता of खुशी, we do not tend to feel that we're moving somewhere, right? But some point of time, whatever you're learning, there is a one very basic thing that you need to rely on is the process. And you got to trust it. Since so many people have done it, since you have done it so many times in your past in some different manner, it takes time. चीज़ें लगती हैं, टाइम लगता है कुछ बनने के लिए. एक दिन में कोई भी विराट कोहली नहीं बनता, एक दिन में कोई भी शाहरुख खान नहीं बनता. शाहरुख खान बनने में you need to go through the struggle and you need to give the time. Time is one of the critical unit of learning. Few days you show off to do a task, all you need to give that task to show you the result is just time. So I know you're putting in the work, just give it some time. It pays off. It reflects certain way. Feedback की तरीके से आएगा, win की तरीके से आएगा, loss की तरीके से आएगा, but कुछ तो आएगा. और वो जब आएगा, you will get the next step on what to do. So yeah, this is my sweet and short tip which I have applied in whatever process I'm doing, and I want it to be short, I want it to be very actionable because I want you to listen to it whenever you feel not motivated of doing anything in your life. Bro, you matter, and whatever you wish matters. Nobody gonna come and do it for you. You need to do it for yourself. दिक्कतें आएंगी, पेन होएगा, easy नहीं होएगा, but you know what? We all agreed on it. हमें पता था. But you know what? We know what we want, and that what we want pushes us every day because that's the purpose of life. So go do it. It will hurt, it will suck, but you'll come out victorious anyways. And if you know what, if it's not victorious, it's not the end.